أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی کیسی ہیں سبھی پیاری بہنیں؟ کیسی جا رہی ہے آپ سبھی کی ایگزام کی تیاری؟ السلام علیکم میم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میں اچھی جا رہی ہے، تھوڑا تھوڑا میم چاہیے بھول گئے ہیں پہلے کی چیزیں جی مگر اب تو آج دوہرا رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ. اپنے اپنے نوٹس کے ساتھ ریڈی رہیے. کوشش ہم لوگوں کی یہی ہے کہ آج اس کو کرا لیں کور. جی میم ہماری تو یہ طبیعت بہت خراب تھی میم، ہم کسی طرح سے جوائن کرا ہے ہم نے، بہت ہی دنوں سے خراب چل رہی ہے. اللہ تعالیٰ سبھی بیمار جو بھی ہیں ان سبھی کو صحت عافیت کے ساتھ رکھے، خیر کا معاملہ کرے اور بہترین جی لیول پر میم بہت بہت اچھی طرح شکریہ. سے آپ سبھی کے ساتھ جو ہے وہ ایگزام میں آسانیاں ہو، بآسانی آپ سب سنا سکیں. جی میم چلیں شروع کرتے ہیں. انشاءاللہ. جیسا کہ ہم لوگوں کا پوری پی ڈی ایف پر آج ہم لوگوں کو ریوائز کرنی ہے. الحمدللہ کافی سارے لوگ اس میں اچھے سے اس کو کرے ہوئے ہیں اور کرا بھی رہے ہیں. سبحان اللہ، ساتھ ساتھ حفظ بھی ان کا چل رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کی برکت سے ان کے گھروں کی ہر مشکل کو خیر میں بدل دے اور آسانی فرمائے. اوکے چلیں ہم لوگ انشاءاللہ شروع کرتے ہیں. ہم لوگوں کا شروع سے یہ جو پی ڈی ایف یہ لینا ہے اس میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے سیکھا تھا کہ حروف تہجی یعنی کہ اردو میں سے کہیں گے حروف تہجی، عربی میں سے کہا جاتا ہے حروف الہجا. تو حروف الہجا کیا ہے اور حروف تہجی کیا ہے؟ تو جس کا جواب ہوتا ہے کہ حروف تہجی اور حروف ہجا الفابیٹس ہیں، عربک الفابیٹس ہیں یا عربک کے جو حروف ہیں وہ حروف تہجی یا حروف ہجا کہلاتے ہیں. انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہ معلوم ہو تو دیکھیں آپ کے سارے نوٹس لے کے چلیں، اس کے ساتھ ہی انشاءاللہ اس کو وہ کرتے جائیں. دوسری بات یہاں پر یہ بھی لکھی ہوئی ہے کہ تجوید کسے کہتے ہیں؟ تجوید وہ علم ہے جس کی وجہ سے عربی حروف تہجی یعنی کہ جو یہ عربی کے الفابیٹس ہیں اس کو صحیح تلفظ کی صلاحیت پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ صحیح سے بول پانے کی صلاحیت، یعنی کہ ایک کوالٹی ایک چیز ہمارے اندر پیدا ہو جاتی ہے جب ہم تجوید کا علم لیتے ہیں. یعنی حروف کو اس کے صحیح مخرج اور صحیح صفات کے ساتھ پڑھنا تجوید کہلاتا ہے. تو ابھی فی الحال آپ کی پی ڈی ایف میں جو یہ بات لکھی ہے تو آپ یہی تک رکھیں. جب آپ لیول 2 میں جائیں گی تو اور ڈیٹیل میں آپ کو تجوید کی ڈیفینیشن پتہ چلے گی. اس کے علاوہ ہم لوگوں نے اس میں تھوڑی سی باریکیاں دیکھی تھی کہ ہمیں اس میں الف بڑا نہیں کرنا ہوتا ہے، الف با تا سا اس طرح سے پورا پڑھتے ہوئے جانا ہوتا ہے کہ ایک جلدی بھی نہیں ہو اور با کے ساتھ ایک الف مد، تا کے ساتھ ایک الف مد اتنا بڑا بڑا سے کھینچ کے چلنا ہوتا ہے. با تا سا اس طرح سے. پھر جیم ح خ دال ذال را زا سین شین صاد. اس میں کیا بات کی دیکھی تھی ہم لوگوں نے کہ سواد نہیں کہیں گے، ٹھیک ہے، سود کہیں گے ایک جیسا ہیوی رکھیں گے. سو جتنا بڑا بھی چلا جائے نا تو اس کے اندر ہمیں بیچ میں سوا وا والی ساؤنڈ نہیں دینی ہوتی ہے. سود بود تو و سب کو ایسی توا دعا نہیں کہیں گے. عین غین فا قاف کاف لام میم نون. نون میں نون ہے بیچ میں واو جو ہے وہ کلیئر ہوتا ہے، نون ناک میں نہیں ہوتی آواز، ٹھیک. اس کے بعد واو، واو کو بھی پروناؤنس کرنے کے لیے ہم لوگ نے تھوڑی سی کوشش اچھے سے دیکھی تھی کہ واو جو ہے وہ واو نہیں ہے. وا جو ہے وہ ہم لوگ نارملی جو اردو اور ہندی میں ہم لوگ وا کہتے ہیں یہ وہ والا وا نہیں ہوتا، عربی میں ہوتا ہے وا. وا
होठों को गोल करके हमेशा, जैसे कि तिलावत में भी बार बार कहते हैं कि वमा कहना है, वमा नहीं, ठीक। तो वा कहेंगे, वाव 2 बार होठ गोल होंगे, फिर हा, हमजा, या। तो चलें, आपने देख लिया कि तजवीद किससे कहते हैं और हुरूफ तहज्जी क्या है, हुरूफुल हिजा क्या है, ये सारे क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिल गए। अब दूसरे सवाल हैं हमारे। इस पीडीएफ के लिहाज से आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन नोट्स अपने पास बनाए हुए हैं, और इस अपने नोट्स ही खोल के रखिए और उसी में सवाल भी ऐड करती जाइए, ताकि कभी आपको फिर किसी को पढ़ाना बताना हो या आपको एग्जाम में भी कोई इस तरह का सवाल पूछा जाए तो आप अच्छे से बता सकें। प्रूफ इसके बाद अब आता है लेवल 1 में हम लोगों ने 4 ग्रुप के नाम सीखे थे, जो कि थे हुरूफ हलकी, जो कि यहाँ पर है हुरूफ हलकी। ये जितने भी हैं, ये 3 जो हैं जो हुरूफ हल्की बन के हम लोगों ने याद किए थे, हमजा हा, ऐन हा और गैन खा, इन तीनों को हुरूफ हल्की कहा जाता है। और दूसरा जो ग्रुप हम लोगों ने लिया हुआ था वो था हुरूफ लसविया, यानी कि जबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ। तो उसमें आप को मालूम था कि कौन कौन से हुरूफ जो हैं वो जबान की नोक से पढ़े जाते हैं, सा, जाल और वाव, जो कि हमारा ये वाला पार्ट था, सॉरी। ये वाला पार्ट जो है हमारा, ये हुरूफ लसविया है। हुरूफ लसविया जबान की नोक से अदा होने वाले हुरूफ। उसके बाद का हमारा था हुरूफ सफीर, सीन, जा और सौद, जो कि सीटी वाली आवाज लिए हुए होते हैं। इसमें से ये हमारे हो गए 3 ग्रुप। एक लास्ट ग्रुप जो यहाँ पर हम लोग का ऐड नहीं किया हुआ, वो क्या था, वो है हुरूफ हैवी वाले हुरूफ, हुरूफ इस्तिअला। तो आप इसको इंशाल्लाह हैवी हुरूफ करके लिख लीजिए। और जिसका हम लोग ने ग्रुप किया था इसको इसी तरह से याद करिए, क्योंकि ये आगे आपको इसी तरह मिलेंगे। ग्रुप के मजमुआ यानी कि एक वर्ड बना लिया जाता है, खुद सदक़तिन क़िज़, यानी दग़तिन ज़ाद ग़ैन ज़ा और फिर क़िज़, ऑफ और ज़ा। 7 हुरूफ जो हमेशा हैवी रहते हैं। रॉ जो है वो कभी हैवी कभी बारीक वाले में आता है, इसलिए वो हैवी लेटर के ग्रुप में नहीं आता है। तो 4 ग्रुप आप लोगों ने जो याद किए थे कौन कौन से थे, हुरूफ हल्की, हुरूफ लसविया, हुरूफ सफीर और हुरूफ इस्तिअला, हैवी हुरूफ। इसके बाद हम लोगों ने देखा कि हरकत किसे कहते हैं। हरकत कहते हैं, हरकत की प्लूरल है हरकत, यानी जबर जेर पेश को हरकत कहता है, जिसमें आप किसी लेटर को किसी तरफ की मूवमेंट देंगी, जैसे आ ऊपर की तरफ ऐसा मुंह खोल के, फिर ई नीचे बारीक शार्प, और फिर दूसरा ऊ। तो जिस तरह से आप मूवमेंट देंगी उस हरकत को हम लोग हरकत कहते हैं अरबी में, और ये जबर जेर पेश है। इनको दूसरा सवाल होता है हरकत किसे कहते हैं, जबर जेर पेश को हरकत कहते हैं। इसी का सवाल है कि इन्हें कैसे पढ़ा जाता है, तो इसका जवाब होता है कि इन्हें जल्दी पढ़ा जाता है, जरा भी नहीं खींचते हैं, ठीक है। यहीं पर हमारा तीसरा सवाल आ जाता है कि हमजा और अलिफ में क्या फर्क है। तो जो बिल्कुल सादे लिखे होते हैं वो अलिफ कहलाते हैं, या आप ये कह लें कि अलिफ से पहले अगर फतहा हो, किसी भी लेटर पे फतहा और उसके बाद जो अलिफ लिखी होती है वो अलिफ कहलाती है, ठीक है। बाकी आपकी इस तरह की हरकत लगी हुई कोई भी होंगी तो फिर वो क्या कहलाएंगी, ये हमजा, सबके सब ये हमजा कहलाती हैं, ठीक है। अरबी कुरान में थोड़ा सा इसमें और फर्क होता है कि वो इस तरह से हमजा के अगर हमजा होती है तो वो हमजा के साथ एक हमजा लिख ही देते हैं, ठीक है। इनको भी स्पेलिंग करने का तरीका हमजा उन्होंने पढ़ लिया था। हमजा फतहा आ, हमजा कसरा ई, आ ई, हमजा बम्मा उ, आ ई उ।
अल्लाह सुब्हानहू ताला ये सारी चीज़ें जो है बेहतरीन तरीके से आप लोग माशाल्लाह इसको रिवाइज भी किया करते हैं, बीच बीच में एग्जाम सभी कुछ देते हैं, बेहतरीन तरीके से आप लोगों को याद रहे। तो अगर कोई इस तरह का सवाल आए कि ये क्या है, तो आप इसको अलिफ कहेंगी, और ये क्या है तो ये हमजा है। इनमें हम लोगों ने जो हैवी लेटर थे उनको अच्छी तरह से ध्यान रखा था कि ये चीज़ें हैवी ही रहेंगी, चाहे फतहा कसरा दमा किसी पर भी हो। क़ क़ीक़ू, इसको हम लोग क़ क़ीक़ू, इनको बिल्कुल भी क़ी जो है वो मुश्किल करता है, ती के साथ लोग इसको पढ़ना शुरू कर देते हैं, ती नहीं कहा जाएगा, क़ी ही रहेगा वो। तो क़ क़ीक़ू ता ती तू, जो हैवी है वो हमेशा हैवी है, जो बारीक है वो हमेशा बारीक रहेंगे। इसके बाद हम लोगों ने देखा था तनवीन किसे कहते हैं। तनवीन दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, यानी फतहा तान कसरा तान और ज़म्मा तान को तनवीन कहा जाता है। तनवीन के जो फतहा तान है उसके साथ ये एक अलिफ रहता है, जो कि आप जब हम यहाँ पर रुकते हैं तब इसका यूज होता है कि हम तब ये वाला एक अलिफ, यानी कि इसका एक फतह हटा दिया जाता है और तब ये बन जाता है अलिफ मद्दा की तरह इसे पढ़ा जाता है रुकते वक्त। इसलिए कभी ये या की शक्ल में अलिफ लिखा होता है, अगर या इस तरह से भी लिखा हो तब भी वो अलिफ ही कहलाता है, इसका नाम होता है अलिफ मकसूरा। तो ये असल में फिलहाल बस फतहा तान के साथ ये अलिफ एक होता है, जो कि हमेशा इसी के साथ इसी तरह आपको मिलेगा। पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है क्या आप लोगों की तरफ? नो मैम, नहीं हो रही है। अच्छा, हाँ हो रही है, हो रही है, ओके। चले, हो जिनका रही है, नेट हो वीक है रही है। उनकी तरफ प्रॉब्लम हो रही होती है, आप दोबारा ज्वाइन करिए, जिनकी जिनकी तरफ पीडीएफ शेयर नहीं हो रही है इंटरनेट प्रॉब्लम होने की वजह से, कभी ऐसा हो जाता है। अल्लाह ताला आसानी करे। चले आगे बढ़ते हैं। तो मीम फतहातेन मन, इसकी स्पेलिंग कैसे रहती है अरबी में? मीम फतहातेन मन, मीम कसरातेन मिन, मन मिन, मीम दम्मातेन मुन, मन मिन मुन। फिर हम लोगों ने छोटे वर्ड्स को मिला करके पढ़ना सीख लिया था। अभी हम लोगों की हरकत हो गई, हरकत पढ़ लिए और साथ साथ तनवीन भी पढ़ ली। अब इनकी स्पेलिंग हमजा फतहा आ, बा फतहा बा, अबा, दाल फतहा तीन दन, अबादन। ये इस तरह से इंशाल्लाह जो भी डिफिकल्ट, जैसे ये आप देख रही हैं खौ ला कौ, बीच में सीधा लेटर है, इधर उधर हैवी लेटर है, तो इनको जितने भी इस तरह के लेटर हैं सारे यहाँ पे रीडिंग ने कोशिश करके वो वाले वर्ड दे दिए हैं जिनकी हमें अलग से जरूरत पड़ती है कि हम प्रैक्टिस करें। तो जब भी हम खौ ला कौ कहेंगे तो हम खौ को अच्छा हैवी करेंगे, ला को बिल्कुल सीधा रखेंगे, ठीक है। खौ ला कौ, कौफ को भी हैवी करेंगे। दूसरी प्रैक्टिस में हम लोग क्या देखते हैं कि एंड वाला जो है वो हुरूफ वो हरकत के साथ अगर है तो उसको बड़ा नहीं होने देंगे। अबसा, अबसा नहीं कहेंगे, ठीक है। ज्यादातर हमारी मिस्टेक हो जाती है कि एंड को हम बड़ा कर ले जाते हैं। अदला, तो जब आप हरकत एंड में देखें उसको बिल्कुल एक ही हरकत के जितना टाइम देंगी और जल्दी पढ़ा जाएगा। इसके बाद हम लोग आ जाते हैं हुरूफ मद पर, जो कि ये हैं हुरूफ मद्दा। अलिफ से पहले फतहा, अभी बात हो रही थी जो अलिफ से पहले अगर आपको, क्योंकि अलिफ खुद ब खुद साकिन होता है, अगर उस पर सुकून लगा दिया जाए तो वो हमजा पढ़ा जाता है फिर। लेकिन सारे साकिन हुरूफ के पहले अगर ये साइन आए, इसलिए हम लोग अलिफ साकिन भी कह लेते हैं, तो इट्स ओके। अलिफ से पहले फतहा, या साकिन से पहले कसरा, वाव साकिन से पहले दम्मा, अगर ये तीन लेटर इस कंडीशन में आपको मिलेंगे तब ये उस वक्त हुरूफ मद बन जाएंगे, यानी कि इनको मद करके पढ़ा जाएगा। मद माने होता है लंबा बड़ा खींचना, तो इन्हें थोड़ा सा बड़ा करके पढ़ा जाएगा। तो अब आप देख रही हैं कि ये बा फतहा अलिफ सुकून बा, ता फतहा अलिफ सुकून ता, इस तरह से ये पढ़े जाएंगे। और यहाँ पर इनकी प्रैक्टिस है। इसके बाद या वाले की ये एग्जाम्पल बने हुए, या साकिन से पहले कसरा। तो ये इंडिया का कुरान जो है इसमें ये अलिफ के साथ तो सुकून नहीं डालते हैं, क्योंकि वो कहते हैं कि हम अलिफ के साथ अगर सुकून लगाएंगे तो वो हमजा बन जाएगी। लेकिन इंडिया के सऊदी कुरान में कोई ऐसा डिफरेंस नहीं होता, उनकी हमजा बिल्कुल सेपरेट होती है और समझ में आती है, क्योंकि वो हमजा के ऊपर हमजा लिखते हैं और उनके हुरूफ मद पर वो किसी पर भी नहीं डालते हैं। इंडिया के कुरान में वो अलिफ मद के साथ तो कोई साइन नहीं डालते हैं, लेकिन या और वाव मद के ऊपर वो सुकून डालते हैं।
अरबी कुरान में क्या फर्क है कि वो किसी हुरूफ मद्दा पे कोई सुकून नहीं डालते हैं। इसके पहले वाले लेटर से हमें पता चलता है कि यहाँ पर ये है, ये मद है। ठीक है, चलिए तो इसकी स्पेलिंग कैसे होती है? बा कसरा या सुकून बी, ता कसरा या सुकून ती। और पढ़ने का कैसा तरीका है? इनके हुरूफ बीच में देखिए जैसा भी आ रहे होते हैं, तो जो जहां जहां पर मद है वहां वहां पर हम लंबा करेंगे, और जहां पर हरकत है वहां पर हम जल्दी पढ़ेंगे। जैसे करीबू, तो बू नहीं कहेंगे, करीबू, ये मिस्टेक है। एंड में हरकत पे खत्म हो रहा है तो हम भी जल्दी पढ़ेंगे, करीबू, बस इतना। इसी तरह आप देख रही हैं कि ये वाला हरूफ जो है ये हरकत के साथ खत्म हो रहा है। और ये दूसरा है जो कलामी, रुसुली, तो जहां पर हरकत है वहां पर आप इसको हुरूफ मद है वहां पर आप बड़ा करेंगे। जैसे कि रुसुली, कलामी, एंड में आप इस तरह से बड़ा करके पढ़ेंगे। तीसरा हमारा हुरूफ मद है वाव, जिसको हम दो हरकत खींच के पढ़ते हैं। और कब? जब वाव साकिन हो और उससे पहले दम्मा लगा हो, तब ये वाव जो है वो अपने हुरूफ का मद बन जाता है और कोई इसमें इसका वो बाकी नहीं रहता। तो हम लोग कैसे पढ़ते हैं? बा दम्मा वाव सुकून बू, ता दम्मा वाव सुकून तू, इस तरह से। ये हो गए हमारे हुरूफ मद। हम लोग ने पढ़ा था कि हुरूफ मद जो हैं वो दो तरह से कुरान में लिखे हुए मिलते हैं। अगर आपके पास इंडिया का कुरान है तो आप देखती होंगी कि हमजा फतहा अलिफ सुकून आ कहलाता है, और इसके अलावा अलिफ के ऊपर अगर खड़ा जबर भी लगा हो तब भी हम उसे आ ही पढ़ते हैं ना, आ मना। तो जो दूसरा तरीका है वो ये है, ये अलिफ मत, जैसे कि आप देख रही हैं कि अभी आपने देखा था कि बा फतहा अलिफ सुकून बा था, वो भी सेम चीज थी और ये भी सेम चीज है। ठीक है, तो एक कुरान में आपको दो तरह से लिखा हुआ मिल जाएगा, जैसा कि यहाँ पर आप देख रही हैं। और इसमें हमें खाली लिखने में फर्क पता चलता है, जब आप रीडिंग करेंगी तो आपको इसमें कोई फर्क नहीं पता चलेगा। और फिर ये इसी तरह से लिखा होगा, बा फतहा अलिफ सुकून, ये बा होगा यहाँ पर और इसके साथ उसका अलिफ होगा, इस तरह से यहाँ पे जबर होगा बस। ओके, ये मेरा आज कुछ चेंजेस हुए हैं। चलिए, ये इसका दूसरा तरीका है। तो जब आप पहला देख लेंगी और उसके साथ चाहे बा फतहा अलिफ सुकून बा कहें या बा फतहा मुस्तकीमा बा कहें, दोनों एक ही चीज है। तो एक कुरान में आपको दो तरह से लिखा हुआ मिलेगा इंशाल्लाह। ठीक है, इसी तरह दूसरे वाले की हम लोग देख लेते हैं एग्जाम्पल कि यहाँ पर देखिए इन्होंने अरबी कुरान के लिए भी तरीका जो होता है वो भी दे दिया है। अरबी कुरान में वो कैसे लिखते हैं, ये देखिए आप यहाँ पर जो इन्होंने दिया हुआ है रिसालातिही, वो सेम ही सेम लिखते हैं, जेर के साथ एक या रहती ही है लेकिन वो छोटी सी या लिख देते हैं जिसको हम लोग कहते हैं या सगीरा। इंशाल्लाह आगे भी आपको पेज दिखेगा तो उसमें इसके इसके भी एग्जाम्पल पढ़े हुए होंगे। देखते हैं इसमें है कि नहीं। तो चाहे खड़ी जेर हो चाहे या सगीरा लिखी हो, एक ही चीज होती है। इसी तरह फतहा मुस्तकीमा हो या फिर अलिफ सगीरा लिखा हो, वो तीनों हुरूफ मद को सगीरा यानी छोटा करके लिख देते हैं और सेम चीज ही होती है वो। इसी तरह आप देख लीजिए कि वाव को भी वाव मद को भी एक कुरान में दो तरह से आपको वो लिखा मिलेगा। इंडिया के कुरान में जो अभी आप लोगों ने पढ़ा था, जैसे बा फतहा वाव सुकून बू या फिर उल्टा पेश, तो दोनों एक ही चीज है, दोनों का आप हुरूफ मद्दा ही बताएंगी। अरबी कुरान में इस तरह से लिखा हुआ होता है। यहाँ पर जो ये लिखा हुआ है रहीमहू, वो वाव सगीरा लिख देते हैं अगर उनको उल्टा पेश की जगह पर वाव सगीरा लिखा होता है। दो तरह से हर कुरान में लिखा हुआ आपको मिलेगा। तो ये हो गया हमारे हुरूफ मद, और इनको दो हरकत खींच के पढ़ते हैं। आप कहेंगी कि इसको कैसे पढ़ा जाता है, तो इसका जवाब होता है कि दो हरकत खींच के पढ़ा जाता है।
इसी के साथ अब हमारा आ जाता है साकिन। अब दूसरा कि सुकून क्या होता है, जज़म क्या होता है। जज़म भी अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों का पढ़ा हुआ है। और जज़म के माने होता है इस तरह की, अगर आपको निशानी कहीं लिखी हुई दिखाई दे तो आप अगर उसको पढ़ेंगी, और क्या तरीका है, पीछे से उस हरकत को मिला के फिर पढ़ा जाता है। ठीक है, आप देख रही हैं कि ता के ऊपर सुकून लगा है, तो पीछे से आप जो भी हरकत लगी हुई उसे बा फतहा ता सुकून बस इस तरह से मिला के पढ़ते हैं। जज़म किसे कहते हैं, आप लिखेंगे जज़म सुकून को कहते हैं। सुकून किसे कहते हैं, सुकून जज़म को कहते हैं। या फिर आप कह सकती हैं ऐसे मार्क अगर किसी के ऊपर लगा हो तो उसको जज़म कहा जाता है। और उसे कैसे पढ़ा जाता है, उसे पिछले वाले हुरूफ से मिलाकर पढ़ा जाता है। तो दूसरा हम लोगों ने एक और पॉइंट इसमें लिखा था कि ता और काफ अगर साकिन होंगे तो आप अच्छी हम्स की आवाज के साथ उसे पढ़ेंगी। हम्स क्या होता है, हवा का एक तरह का बहाव होता है कि जो आपके मुंह से जो आवाज पूरी क्लियर उसकी सुनाई दे, जैसे अच, इट, उठ। ठीक है, अख, इक, उख। तो ये ता और काफ के साथ हमें खास ध्यान रखना है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह कहीं पे ऐसा कोई चेंजेस नहीं है। इज, अज, उज, अस, इस, उस, इसी तरह से नॉर्मल आप इसको पढ़ेंगी। दूसरा ही सुकून के साथ आ जाता है कि हमजा के अगर साकिन हो तब हम क्या करेंगे। हमजा पे अगर सुकून लगा हो तो हम उसे झटके से या अचानक से आवाज को कट करके ऐसे पढ़ेंगे। ये दोनों जवाब इसके सही रहते हैं। ता फतहा हमजा सुकून ता, दाल फतहा नून सुकून जन, ता जन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सुकून हमजा के साथ। इसकी आवाज को झटके के साथ कट करके पढ़ा जाता है। व मु, या ती, या कुलू, यु ता, इस तरह से। दूसरा अब हमारा सुकून आता है कलकला पर, कि अगर कुछ लेटर ऐसे हैं कि जिनके ऊपर सुकून लगा हो तो हम उनको कलकला यानी एको साउंड या डबल साउंड, जो भी आप कहें, जिस तरह से भी आपको इसको समझ में वो करके पढ़ते हैं। तो कलकला के पढ़ने का तरीका क्या है कि आप बस ये 5 हरूफ हैं, इनका ग्रुपिंग वर्ड बना लिया गया है। कुतुब जद कहा जाता है इन हरूफ को मिला के। ये भी आप अपने पास लिखिएगा कि कुतुब जद, ताकि कौफ के ऊपर पेश डालिए, कौ के ऊपर भी पेश डालिए, बा के ऊपर सुकून कुतुब, फिर जिन के ऊपर जबर डाल के दाल पे सुकून लगा के उसे वर्ड बना ले कुतुब जद। इसमें से क्या होना है, सुकून का ही ये कंटिन्यूएशन है। अगर इन हरूफ पे सुकून आ जाए तब हम थोड़ी सी आवाज को बाउंस करके, यानी कि बाउंस नहीं कहेंगे, डबल करके एको साउंड करके पढ़ेंगे। जैसे लको, लेको, लोको, बको, बीको, बोको। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि 2 लेटर जो है वो हैवी है। जब हैवी लेटर होता है तो उनका कलकला भी हैवी रखा जाता है। हम लक नहीं कह सकते, लको, लको। ओके, इसी तरह बाकी के 3 हरूफ जो है वो बारीक वाले हरूफ हैं, हैवी नहीं है, तो इनका कलकला नॉर्मल होगा। जैसे सब, सिब, सुब, फज, फिज, फुज, कद, किद, उद। अच्छा जी, हम लोगों ने देखा था कि कलकला के भी पार्ट्स होते हैं, यानी किस्में हैं। 2 किस्म के कलकला होते हैं, एक कलकलतुल कुबरा, एक कलकतुल सुगरा। अगर आप कहीं पर रुक जाएं कलकला के हरूफ पर तो उस कलकला को कलकला कुबरा कहा जाता है। और अगर आप कंटिन्यू आयत में पढ़ती जाएं तो कहीं पर भी पढ़े, वर्ड के बीच में, वर्ड के एंड में, लेकिन अगर आप कंटिन्यू पढ़ रही हैं उसे, तो वो सारे के सारे कलकला सुगरा कहलाते हैं। किस हालत में कलकला कुबरा कहलाता है, जब आप वहां पर सांस ले लें, रुक जाएं। ठीक है, जैसा कि ओके, ये थे मद्दा के एग्जाम्पल यहाँ पर आ गए हैं थोड़े से, और इसी में नीचे कलकला भी है। तो जो हमारे पास इंडिया में लिखा जाता है वो ऐसे होता है, और जो सऊदी कुरान में लिखा जाता है वो इस तरह का होता है। दोनों यहाँ पे इन्होंने दे दिए हैं। ये देखें, ये सारे जो हैं ये सऊदी कुरान के भी तरीके हैं और ये इंडिया का कुरान का, यानी कि वो हरूफ मद को वैसे ही रहने देते हैं, सिर्फ छोटा करके लिख देते हैं। चले आगे हमारा यहाँ पर कि अब अगर हम कलकला पर रुक जाएं, उखरुज, तब तो हम इसे कलकला कुबरा कहेंगे। लेकिन अगर हम कंटिन्यू पढ़ते चले जाएं, लक़द खलक़नल लक़द, तब आप कहेंगी कि ये कलकला सुगरा है, चाहे एंड में ही क्यों ना आ रहा हो। जहां पर हम सांस लेते हैं वो सांस लेने की जगह कलकला कुबरा कहलाती है।
तो बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है कि जहाँ पर कलकला का हरूफ है वहीं पर ही हम कलकला करें। मोस्टली गलती से आगे पीछे के हरूफ भी कलकला होना शुरू हो जाते हैं, जैसे उखरुज, उख, ख तो कलकला का लेटर नहीं है तो हम इस पर कलकला नहीं करेंगे और कहेंगे उखरुज। यज़हब, यहाँ पर भी ज़्यादातर हो जाता है यज़हब, यज़ नहीं है, यज़हब, दाल को आप रोकेंगी और बाग पे कलकला करेंगी, यज़हब। तो जहाँ पर कलकला के लेटर जो नहीं है उनके ऊपर हम कलकला नहीं करेंगे, और जो कलकला के हरूफ हैं बस ये 5 ही हैं, उन्हीं के ऊपर ज्यादातर गलती से हमसे लाम से भी हो जाता है, नून का भी हो जाता है। वल फजरी, वल नहीं कहा जाता, वल फजरी। चलें अब आ गया हुरूफे लीन। हुरूफे लीन क्या होता है? लीन के माने होते हैं नरमी, आसानी, नरम। तो आप कहेंगे कि किस तरह से इसको नरम करके पढ़ना है? दोनों को नरमी से अदा किया जाता है। या और वाव जब साकिन हो, यहाँ पर आप देखें या और वाव जब साकिन हो और उनसे पहले फतहा आ जाए, जैसे कि एग्जाम्पल में आप देख रही हैं ता के बाद वाव सुकून है, ता फतहा के बाद या सुकून है। तो जब या और वाव साकिन हो और उनसे पहले वाले हुरूफ पर फतहा लगा हो, इस कंडीशन में ये वाली या और ये वाली वाव जो है वो दोनों हुरूफे लीन कहलाती हैं। ठीक है, जिनके पास नोट्स लिखे हुए हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह फटाफट अच्छे से रिवाइज कर पा रहे होंगे, और जिनके पास नोट्स नहीं है, तो पीडीएफ नहीं है, नोट्स भी नहीं है, तो उनको बहुत ही हो सकता है अल्लाह करे सभी को समझ में आ रहा हो, क्योंकि पूरी पीडीएफ आज हम लोग रिवाइज करने वाले हैं लेवल 1 की। तो अल्लाह से खूब आसानी है, दुआ है कि आसानी करे अल्लाह ताला। पहला काम क्या था कि आप सबको लिख के रखना था, तो अपने अपने नोट्स जरूर खोल के रखें ताकि क्लास अटेंड करने से आपको फायदा हो। ओके, तो यहाँ पर हमने देखा कि ये कैसे नरमी से अदा होंगे, तऊ, तई, इस तरह से। इसके और सऊ, सई। उर्दू में जो हम लोग इसे पढ़ते हैं, हम लोग इसको मोस्टली ज्यादातर उर्दू में हुर्फ लीन जो है वो नरमी के साथ ऐसे अदा नहीं होता, और हम लोग पढ़ते हैं लैल, खैर, या फिर खौफ, ओ की साउंड देते हैं वाव को और ए की साउंड देते हैं या को, तो ये दोनों साउंड ही जो है वो गलत है हमारे पास। और इसको हम किस तरह से पढ़ेंगे? जो फतहा है उसको अलग पढ़ लेंगे और उसको फिर वाव पे लेके आएंगे। ता फतहा, ता होता है, ता को वाव में लाएंगे और साउंड होगी तऊ। ता फतहा ता होता है, उसको या में लाएंगे, साउंड होगी त या तई, तई ना कि तय। ठीक है, ता फतहा तय तो कोई साउंड नहीं होती है अरबी में। उर्दू में इसको पढ़ा जा सकता है, लेकिन अरबी में जैसे ही आप लैलतुल क़द्री कहेंगी, लै ये साउंड बिल्कुल गलत है क्योंकि लाम के ऊपर फतहा लगा है। फतहा हम लोगों ने शुरू में ही सीख लिया, लाम फतहा ला होता है। अब चाहे आप उसे कहीं भी मिलाएं वो ला ही रहेगा, अगर उसके ऊपर फतहा है तो पढ़ा जाएगा लई, लई। ठीक है, लाम का फतहा अलग, या का लीन अलग। तो लई लऊ, जई जऊ, सई सऊ, या फिर शौ शई, सौ सई, इस तरह से। तो ये हो गया हुर्फ लीन। यहाँ पर हम लोग गलती से पढ़ते हैं इले का, ले नहीं, इलई का, तू नहीं होता, तू। जो भी यहाँ आएगा तो आप अच्छा उसको नरमी के साथ पूरा पूरा अदा करेंगी। फौqa ना कि फौका, फौ नहीं है, ये फा है, फा को वाव में लाएंगे, फौqa। चलें, तनवीन पीछे ही हम लोग ने पढ़ लिया था क्या है। तनवीन के बाद यहाँ पर नून साकिन का चैप्टर शुरू हो रहा है, इसलिए दोबारा तनवीन दो जबर दो जेर दो पेश को कहते हैं। और क्या है, तनवीन इस तरह से लिखी हो या फिर नून के बाद सुकून लिखा हो, सॉरी फतह के बाद सुकून लगा हो नून के साथ ही, तभी भी हम बन पढ़ेंगे, बा फतह तीन बन, बा फतह नून सुकून बन। ऐसी हालत में ये दोनों ही यानी कि एक ही चीज होती है, लिखने का तरीका अलग है, चाहे वो नून हो और चाहे तनवीन हो। तो चाहे बन बिन बुन तनवीन के साथ लिखा हो, चाहे नून साकिन के साथ लिखा हो, ये वाला बा फतह नून सुकून बन, बा कसरा नून सुकून बिन। तो एक ही आपको पढ़ने में आप नहीं बता सकते कि मैं तनवीन पढ़ रही हूँ या नून के साथ सुकून लगा हुआ है वो। तो असल में नून सुकून और तनवीन एक ही चीज होते हैं। तो जब हम इसको पढ़ते हैं नून सुकून या तनवीन, तो रूल एक ही बनेगा, इसलिए चैप्टर का नाम होता है नून सुकून और तनवीन।
नून सुकून और तनवीन के अहकाम, तो आप उसमें 4 रूल आएंगे उसके अंदर, इजहार, इदगाम, इक़लाब और लास्ट में आता है इख्फा। तो इसको इंशाल्लाह इसी तरह यहाँ पर ऊपर कोई हेडिंग पड़ी भी नहीं है, आप लोग यहाँ पे हेडिंग डाल लीजिए, नून साकिन और तनवीन के रूल जो कि 4 होते हैं, इजहार, इदगाम, इक़लाब और इख्फा। सबसे पहला जो रूल है वो यहाँ पर से शुरू हो गया है, इजहार। तो इजहार किससे बनता है? जब हुरूफ हल्की आए आगे। तो आप इसीलिए शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग ने हुरूफ हल्की याद कर लिया था, तो अब आपको इसको समझना और आसान होगा। नून साकिन या तनवीन के बाद अगर हुरूफ हल्की या फिर तनवीन, नहीं तनवीन तो हम लोगों ने शुरू में ही ले लिया, तनवीन या नून साकिन के बाद हुरूफ हल्की आए तो नून को हम जाहिर करके पढ़ेंगे, बगैर गुन्ना के जाहिर करके पढ़ेंगे, यानी हम उसे खींचेंगे नहीं और लंबा नहीं करेंगे, और क्लियर जाहिर आवाज को, जैसा हर एक का मखरज है, वाव कह रहे थे तो होठों के लिए नून कह रहे हैं तो जबान की नोक जहाँ लगनी चाहिए, नून जो है वो जबान की नोक का ही हुरूफ है तो वो ऊपर की तरफ लगनी चाहिए, वैसे ही हम उसके सही मखरज से उसे जाहिर करके अदा कर देंगे, यानी नून को हम कहीं छुपाएंगे नहीं, नाक में गुन्ना नहीं करेंगे, खींचेंगे नहीं, ये सारी चीजें नहीं करेंगे, जैसे नॉर्मल सभी को पढ़ रहे थे इसको भी ऐसे कब, जब पहले आप देख रही हैं नून साकिन आया है और उसके बाद हुरूफ हल्की आ गया है, तनवीन आया है और उसके बाद हुरूफ हल्की आ गया है, तो अगर इस तरह की कंडीशन आपको दिखे तो आप नून को, उस नून को जाहिर करके पढ़ेंगी कैसे, यनऔना, यन यनहौना, अनअमता, यनहितूना। अगर हम इसे यनहितूना ऐसे खींच के पढ़ेंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगी। नॉर्मल इसे जैसे सारे हुरूफ नॉर्मल पढ़े जाते हैं वैसे ही पढ़ेंगे, चाहे आप तनवीन में पढ़े चाहे नून साकिन। निशानी क्या है? तनवीन के बाद आप देखेंगे कि हुरूफ हल्की, नून साकिन के बाद आप देखेंगे हुरूफ हल्की। हुरूफ हल्की 6 हैं, हमजा, हा, ऐन, हा, गैन, खा। तो ये बस आप पूरे कुरान में कहीं भी नून साकिन देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि अब कोई ना कोई मुझे एक रूल तो इसमें अप्लाई करना ही करना है, क्योंकि हर नून साकिन और तनवीन के बाद एक रूल आता है। सभी में हमें खींचना है, सिर्फ और सिर्फ इजहार में हमें नहीं खींचना है। तो अगर आपको हुरूफ हल्की याद हो जाए और उसके बाद का आपको दिख जाए कि मुझे इसे नहीं खींचना है, तो बस आप बाकियों को खींच देंगी तो इंशाल्लाह आपका गुन्ना का जो पार्ट है वो अच्छी तरह से अदा हो जाएगा। जैसे कि इदगाम, अब आप इदगाम में भी आपको इंशाल्लाह क्या क्या करना होगा वो हम लोगों ने लिखा था कि इदगाम के माने होता है मिलाना, और इस तरह से मिलाना कि आगे वाला हरूफ जो है वो मुशद्दद हो जाए, ठीक है, इस तरह से मिलाया जाए कि आगे वाला हरूफ जो है वो तशदीद में बदल जाए। जैसे कि आपको अगर पढ़ना हो, आप एग्जांपल यहाँ देख रही हैं, आप अभी मर्जिंग करेंगी और आप कहेंगी गफूरुर, ये रॉ के ऊपर शद्दा नहीं था, ये इदगाम करने की वजह से आ गया, और हम पूरा मिला के पढ़ेंगे गफूरुर रहीमुन मिर रब्बिकुम। इनका भी जो मजमुआ है वो यरमलून है, आप देख रही हैं यरमलून, तो ये जो यरमलून है यानी या रा मीम लाम वाव नून, यरमलून जो है वो हमारा ये 6 लेटर जो है ये अगर आएंगे, इससे पहले भी हुरूफ हल्की में आपने देखा था 6 थे, यहाँ पर भी 6 हैं। अगर ये 6 लेटर्स नून साकिन और तनवीन के बाद आ जाएंगे तो इससे पहले उन्होंने देखा था कि हम लोग जाहिर करके पढ़ेंगे हुरूफ हल्की हो, तो अब देख रहे हैं कि यरमलून में से कुछ होगा तो हम मर्जिंग करके पढ़ेंगे, यानी एक को दूसरे में दाखिल कर देंगे, और दाखिल भी हमारा जो है वो 2 तरह से पूरा दाखिल हो जाता है या फिर आधा आधा दाखिल करते हैं, और गुन्ना के साथ पढ़ेंगे या फिर बगैर गुन्ना के, तो 2 किस्में हैं इसके अंदर। पहला यहाँ पे जो हमारे पास लिखा हुआ है कि नून साकिन और तनवीन के बाद रॉ या लाम आए तो हम इदगाम बिला गुन्ना, बगैर गुन्ना के इदगाम करेंगे, यानी मर्ज कर देंगे पूरा और गुन्ना नहीं करेंगे। गफूरुर रहीमुन मिर रब्बिकुम, आपने देखा कि मी को हम रॉ की तरफ लेके चले गए, कंप्लीट इदगाम कर दिया, बीच का नून पूरा हट गया, और गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि नून पूरा हट गया है। मिर रब्बिकुम, मिर रिज़्क़ी, तो 2 है, लाम और रॉ जब आता है तब हम इसे पूरा मर्ज करके पढ़ते हैं अल्लन। दूसरा पार्ट इसका जो यहाँ लिखा हुआ है कि इदगाम और नून साकिन के बाद अगर यौमन या वाव मीम नून में से कोई आए तो हम गुन्ना के साथ पढ़ेंगे उसे, कैसे?
من युदब्बिरु हक़्क़ुन वलाकिन, कुछ भी आएगा इसमें से हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। एक पार्ट जो इसमें नहीं लिखा हुआ वो हमारी पीडीएफ में, जो कि हम लोग ने आप लोगों को डिक्टेट करवाया था, वो ये कि इदगाम कामिल यानी कंप्लीट मर्जिंग या फिर इदगाम नाकिस इनकम्प्लीट मर्जिंग। तो इदगाम कामिल क्या है? जिसमें आप नून पूरा हटा देती हैं बीच का, ये वाला हुरूफ जो है वो पूरा मीम कसरा नून शद्दा मिन, बिल्कुल मीम का बीच का हटा देती हैं। मिन नारिन खैरम मिनहुम, खैरन मिनहुम नहीं पढ़ते हैं, मिम मिथकाली। तो अगर इस तरह से रहता है तब हम कहते हैं कि कंप्लीट मर्जिंग हो गई। कंप्लीट मर्जिंग में क्या क्या लेटर है? पहले आपने देखा था कि लाम और रॉ था। लाम और रॉ अगर आता है तो हम बीच का नून पूरा हटा देते हैं और इदगाम कामिल करते हैं। इसी तरह नून और मीम भी जब आता है तभी भी हम बीच का नून और मीम नून पूरा हटा देते हैं, नून साकिन, और कामिल कंप्लीट इदगाम करके पढ़ते हैं और इसे कहते हैं इदगाम कामिल। अब अगर आप देख लीजिए कि जिसमें गुन्ना हो रहा है तो वो इदगाम कामिल बगुन्ना कहलाता है, और जिसमें गुन्ना नहीं हो रहा है वो इदगाम कामिल बगैर गुन्ना कहलाता है या बिला गुन्ना कहलाता है। लाम और रॉ में गुन्ना नहीं था, वो दोनों का क्या नाम होता है? इदगाम कामिल बिला गुन्ना। और नून और मीम का क्या नाम रहता है? इदगाम कामिल यानी कंप्लीट मर्जिंग करते हैं लेकिन बागुन्ना, गुन्ना रहता है इसमें। अब जो इदगाम नाकिस है वो कौन से हुरूफ हैं? यानी आप इसमें मर्जिंग तो करेंगी यानी इदगाम तो करेंगी, लेकिन नाकिस नाकिस, आधा आधा, कामिल नहीं कर देंगी। तो नून की कुछ सिफात बाकी रखते हैं मिलाते वक्त। आप यहाँ से शद्दा में जाएंगे, मीम फथा या शद्दा मई, और फिर मैं युदब्बिरु ऐसे खींच के पढ़ेंगी। तो इसको कहते हैं इदगाम नाकिस, जिसके सिर्फ दो हुरूफ हैं या और वाव। जब हम इदगाम नाकिस करते हैं तब हम गुन्ना भी करते हैं, क्योंकि हमने नून का गुन्ना बीच में बाकी रखा है। तो इसका पूरा नाम क्या होता है? इदगाम नाकिस बगुन्ना। इसको कैसे पढ़ते हैं? मैं युदब्बिरु। तो इसके अंदर का दो दो पार्ट हैं, इदगाम कामिल और नाकिस के, दूसरा इदगाम गुन्ना और इदगाम बगैर गुन्ना के। फिर एंड में हम देखते हैं कि इन 6 लेटरों में से दो 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 के ग्रुप हैं, इन दो दो के 3 नाम मिल गए होते हैं। लाम और रा के क्या है? इदगाम कामिल बगैर गुन्ना। नून और मीम का क्या है? इदगाम कामिल बगुन्ना। और या और वाव का क्या है? इदगाम नाकिस बगुन्ना, क्योंकि गुन्ना इसका बाकी रहता है। तो आप देखें जो भी काम इसके अंदर हो रहा है वही उसका नाम बन जाता है। जी, इदगाम में आप सभी को समझ में आ रहा है? जी बारकल्लाह फीकुम। थोड़ी सी डिटेल इसकी ज्यादा है, अगर लिखेंगी आपके पास लिखा हुआ होगा तो अच्छे से समझ में आ रहा होता है। इसमें एक एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन यानी कि इस्तिस्ना है। आपका पूरा रूल सब कंडीशंस होने के बावजूद हम इदगाम के बगैर पढ़ते हैं। तो पूरा कुरान में ये 4 हरूफ ही है। अब क्या करेंगी? अगर देखेंगे कि नून साकिन और तनवीन एक ही हुरूफ में आ रहा है तो हम इदगाम नहीं करते हैं, और इसका नाम होता है इजहार मुतलक। तो कैसे पढ़ेंगे? अद्दुन्या क़िनवानुन सिनवानुन। आप देख रही हैं कि नून साकिन के बाद वाव, नून साकिन के बाद या आ रहा है, लेकिन फिर भी हम मर्जिंग नहीं करेंगे, ये वाले नून को जाहिर करके पढ़ेंगे। तो पूरा कुरान में ये 4 वर्ड हैं जिनको कंडीशंस पूरी होने के बावजूद हम इसी तरह पढ़ते हैं। और ये क्यों, क्या वजह है? क्योंकि ये नून साकिन और तनवीन के जो भी हुरूफ है वो नून साकिन और यरमलून के जो भी हुरूफ है वो एक ही वर्ड में आ गए हैं। आप नीचे देखिए कि जो भी नून साकिन और तनवीन के हुरूफ हैं वो अलग अलग आ रहे हैं। ये नून साकिन है, ये लाम है, ये नून साकिन का अलग वर्ड है, लाम का अलग। ये तनवीन है, ये वाव है, ये एक वर्ड अलग है, ये एक वर्ड अलग। तो जब भी इदगाम होता है तो वो अलग अलग वर्ड्स में होता है। पूरा कुरान में इदगाम 4 ही जगह पर एक ही वर्ड में आया है, और फिर हम उसे इदगाम नहीं करेंगे, इजहार करके पढ़ेंगे, जिसका नाम होगा इजहार मुतलक। ये 4 वर्ड्स एक बार फिर से बता दीजिए प्लीज। जी, आपके पीडीएफ में देखिए लिखा हुआ है, दुनिया, जी अद्दुनिया, क़िनवान, बुनियान, सिनवान। इसको हम इजहार मुतलक करके पढ़ेंगे। जी शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। चले, हमारा हो गया इकला, ये भी हो गया इदगाम। आ जाते हैं इकलाब पर। इकलाब के मीनिंग होते हैं बदलना। तो क्या चीज बदलना?
اب اس کے اندر کام بھی ہمیں یہی کرنا ہے. آپ نے دیکھا سب کے نام وہی ہیں جو کہ ہمیں کرنا ہے اندر. جب آپ اظہار کہیں کہ مجھے اظہار کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ نون کو ظاہر کر رہی ہیں کہ نہیں. جب آپ کہیں مجھے ادغام کرنا ہے تو آپ دیکھیں کہ آپ مرجنگ کر رہی ہیں کہ نہیں، یعنی ادغام شدہ سے ملا رہی ہیں یا نہیں. اسی طرح جب آپ اقلاب کریں گی تو آپ دیکھیں کہ آپ نون کو میم میں بدل رہی ہیں یا نہیں، کیونکہ اقلاب کے معنی ہوتا ہے بدلنا. اوکے، تو اس میں کیا ہوتا ہے، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر صرف ایک ہی لیٹر ہے اس کا، ابھی تک 6 چل رہے تھے نا، اوپر 6، پھر ادغام میں بھی 6، یہاں پر صرف 2 ہیں. اگر آپ دیکھیں نون ساکن اور تنوین کے بعد با آ جائے گا، تب ہم نون کی آواز کو میم میں بدل دیں گے. اور الحمدللہ عربی قرآن ہو یا انڈیا کا قرآن ہو، دونوں جگہ وہ ایسی چھوٹی سی میم اس کے اوپر لکھے رہتے ہیں تاکہ ہمیں یاد آ جاتا ہے اور ہم پڑھ لیتے ہیں. برم بوالدیہ، میم تو ہم لوگ پڑھا کرتے تھے، لیکن اس کا غنہ زیادہ تر ہم لوگ مس کر دیا کرتے تھے. اس کی اسپیلنگ بھی اسی طرح سے ہوگی، با فتحہ را شدہ بر، را فتحہ تین میم سکون رم. کیونکہ ہمیں اسے ملا کے پڑھنا ہے، میم کو بدل دینا ہے، تو ہم کہیں گے برم. اسی طرح میم کسرہ میم سکون میم پڑھیں گے، اور نون کی بالکل آواز چلی جائے گی، میم میں بدل کے اسے پڑھیں گے اور پڑھا جائے گا مم بہیمۃ الانعام رجل بہ، کھینچ کے غنہ اور اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. یہ تو صرف اقلاب کا ایک ہی حروف ہے، اچھے سے یاد رکھیے کہ اسے ہمیں کھینچ کے پڑھنا ہے. اس کے بعد آ جاتے ہیں ہمارے باقی سارے بچے ہوئے حروف جو کہ سب کے سب اخفا میں چلے جائیں گے. تو جب آپ دیکھیں کہ اخفا کے حروف یاد کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کے اوپر حروف حلقی، پھر یرملون، پھر با، تو ان کے علاوہ جو بھی بچے ہوئے حروف ہیں سارے کے سارے اخفا میں آ جائیں گے. تو یہ 15 حروف ہیں جو کہ اخفا کے معنی ہوتے ہیں خفی، چھپا ہوا. تو اس میں ہمیں نون کو چھپا کر پڑھنا ہوتا ہے. جو اس کا نون کا جو مخرج ہے، نون کا مخرج کیا ہے، زبان کی نوک اور اوپر کے جو دانت ہیں اس کی جو جڑ ہے وہاں پر. تو جب آپ وہاں پر زبان کی نوک کو اوپر کے دانتوں کی جڑ میں لگائیں گی تو آپ کا نون ادا ہو جائے گا، یعنی ظاہر ہو جائے گا پورا نون. لیکن اگر آپ کو نون کو چھپانا ہے تو آپ اس کے مخرج سے نہیں پڑھیں گی، تو آپ زبان کی نوک کو نیچے والے دانتوں کی جڑ میں لگائیے اور پھر کھینچیے گا. ٹھیک ہے، تو اس کا ہم نے تھوڑا سا PDF میں سے چینج کروایا تھا. کیا لکھا ہے آپ لوگوں نے اپنے پاس کہ تنوین یا نون ساکن کے بعد حروف اخفا آئے تو نون یا نون کی آواز کو آگے والے حروف کے مخرج پر چھپا کے پڑھیں گے، چھپا کر غنہ کے ساتھ پڑھیں گے. تو آگے والا حروف جیسے کہ آپ دیکھ لیں، اگر سا ہے سا، تو آپ آگے والے حروف کے مخرج پر کیسے چھپائیں گی، یعنی کہ آپ نون کو کھینچتے وقت ہی آگے والے حروف کی کہنے کے لیے زبان کو ریڈی رکھیں گی. سا بہت ہی واضح رہتا ہے، اس لیے ہم لوگ اس کو سا کے ساتھ اگزامپل سمجھ لیتے ہیں کہ آپ جب اگر نون کو کھینچیں گی منصورن میں، تو نون کہتے وقت آپ کی زبان کی نوک باہر ہونی چاہیے نون کا غنہ کرتے وقت، اور آپ پڑھیں گی منصورن خیر ثوابا. تو جو یہ رو والی آواز ہے اس میں آپ سن رہی ہیں کہ آواز کلیئر نہیں ہے، چھپی چھپی سی ہے. اگر کلیئر ہوتی تو نون ظاہر ہو جاتا. ظاہر نہیں کرنا ہے، ہمیں چھپا کے غنہ کر کے پڑھنا ہے. تو آگے والے مخرج کو ہم ریڈی رکھتے ہیں زبان کے ساتھ اور پھر ہم نون کو کھینچتے ہیں. عند من جوع، پھر سے آپ نے دیکھا زال آ گیا، حروف العصبیہ ہے. انذرناکم، نون کو کھینچتے وقت ہم نے زبان کو باہر رکھ لیا تھا کیونکہ زال جو ہے وہ حروف العصبیہ ہے، زبان کی نوک باہر ہونے سے ادا ہوتا ہے. اور ہم پڑھیں گے انذرناکم. تو انشاءاللہ آپ سمجھتے ہوں گے کہ کس طرح سے نون کو چھپایا جاتا ہے، یعنی کہ اخفا کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، زا جو ہے بزنگ ساؤنڈ ہے، دانت کے اوپر دانت آ جاتے ہیں لگ بھگ، تو آپ زبان کی نوک کو نیچے رکھ کے دانت پہ دانت لے کے نون کو کھینچیں گی. فَإِن زَلَلْتُمْ، انز، ٹھیک، انز کہیں گے، نہ کہ ہم انز کہیں گے. انز اخفا کا رول جو ہے وہ ہر اس میں لینگویج میں ہوتا ہے، یعنی کہ کہیں پہ لیٹرز ایسے آ جاتے ہیں جس کے پہلے اگر نون یا نہ آئے تو ہم اس کو کلیئر نہیں پڑھتے ہیں. جیسے کہ آپ کے پاس ہندی کا ورڈ ہے کنگھا، کنگھی، کنگھا، پنکھا. وہاں پہ آپ دیکھ رہی ہیں نون ہے لیکن ہم اسے صاف ظاہر کر کے نہیں پڑھ رہے ہیں. پنکھا نہیں کہا جاتا، پنکھا نہیں ہوتا، پنکھا ہوتا ہے. تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ نون کہیں چھپ گیا ہے، کھا کہتے ہیں اس سے پہلے. اسی طرح آپ دیکھتی ہیں گھنٹی
नहीं, घंटी में तो क्लियर है, घंटी क्लियर है। पंखा जो बात हो रही थी, और कंघी थी, ठीक। तो जो कंघी में आप कन्नगी, हम ना कन्नगी नहीं कहते हैं। तो जो कई सब लैंग्वेज में ऐसे होता है। अंकल में भी आप देखें, अनकल नहीं कहते हैं, एन पूरा नहीं पढ़ते हैं। तो ये नून के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हर लैंग्वेज में है, कि हम उसे कहीं ना कहीं छुपा के पढ़ेंगे। इसी तरह अगर आप अनफुसकुम अगर पढ़ रही हैं, तो अनफुसकुम अगर आप नहीं कहेंगी और अनफुसकुम कहेंगी, जैसा कि नॉर्मल हम लोग हमेशा से पढ़ा करते थे, तो ऐसे ही सुनने में आएगा जैसे कोई कहे अनकल। अगर कोई आपके सामने अनकल कहे तो आप क्या कहेंगी? कहेंगी इसको इंग्लिश नहीं आती। ये देखो अजीब तरह से अनकल कह रही, अन पूरा नून जो है वो पढ़ रही है, या एन जो है वो प्रोनाउंस कर रही है। इसी तरह कोई पनखा कनगी इस तरह से बात करना शुरू, तो आप कहेंगे इसको अच्छे से। लेकिन कुरान हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं आराम से, अनफुसा को यंजुरून, इंसान। जबकि यहाँ सब जगह हमें नून को छुपा कर पढ़ना है। तो इंशाल्लाह आप देख रही हैं कि जैसे आगे वाले हुरूफ को कहने के लिए रेडी रहेंगे, और हम इसको छुपा के पढ़ेंगे। हैवी लेटर है तो हमारा नून भी हैवी हो जाएगा खींचते वक्त, और हम पढ़ेंगे यंसुरुकुम, यंसुरुकुम, ठीक है। मदूदिन यंतिकूना, ना कि यंतिकून, ठीक। एक तो खींचेंगे भी, ऊपर से नून की आवाज को छुपा के रखेंगे। चलिए नेक्स्ट हमारा आ गया शद्दा। शद्दा के माने क्या होता है? तजदीद, यानी शदीद से ये बना हुआ है, स्ट्रांग। जब किसी भी लेटर के ऊपर शद्दा आ जाता है तो वो स्ट्रांग हो जाता है, और उसको आपको पढ़ने में और ताकत या और जोर देना पड़ता है। अगर आप बा कहें और रब्बा कहें, तो आप देखें रब्बा में जो आपको था, बा पे ज्यादा जोर देना पड़ा। तो जब शद्दा होता है, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक हो जाता है, लेटर दो हो जाते हैं, और क्या होता है कि पहले वाले पे सुकून लगाना पड़ता है, दूसरे वाले को हरकत से पढ़ते हैं। तो बस यही है कि पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, और ये एक तरह की सख्ती के साथ पढ़ा जाता है। ये रब्बा, युदर्रु, यदुर्रु, सब्बिह, इस तरह से। इसका दूसरा पॉइंट है कि मीम और नून पे अगर शब्द आएगा तो हम गुन्ना करके पढ़ेंगे। जैसे नीचे एग्जांपल, ऊपर भी एग्जांपल है, तुम्मा, इन्ना। तो गुन्ना के सारे पॉइंट आपको अभी तक नून के हिसाब से पता चल गए कि नून साकिन और तनवीन के बाद हुरूफ हल्की आएंगे तो हम नहीं खींचेंगे। बाकी जहां जहां भी आप नून पढ़ेंगी, चाहे मीम में बदल के ही क्यों ना पढ़े, आप उसे खींच के पढ़ेंगी। लाम और रॉ में तो नून हमने हटा ही दिया था, तो खींचने की जरूरत ही नहीं है। बाकी सब जगह आप नून साकिन और तनवीन देखेंगी, उसे खींच के पढ़ेंगी। इसी तरह नून और मीम पे शद्दा लगा होगा, जब भी आप उसे खींच के पढ़ेंगी। चलिए अब हमारा आ जाता है मीम साकिन का रूल, जो कि अब हमें ये भी देखना है कि मीम भी गुन्ना ना, मतलब गुन्ना वाला ही हुरूफ है, उसको कब कब हम खींचते हैं। मीम का बहुत आसान है चैप्टर, 3 ही इसके नाम आते हैं। इसमें हम मीम को इजहार करेंगे तो उसका नाम है इजहार शफवी। एक जगह पे हम मीम को छुपा के पढ़ेंगे, उसका नाम है इख्फा शफवी। एक जगह पे हम इदगाम करके पढ़ेंगे, यानी मीम को मर्ज कर देंगे आगे वाले मीम में, तो फिर वो इदगाम शफवी बन जाएगा। तो आपने देखा कि इसके साथ शफवी शफवी वर्ड ऐड है। तो असल में इससे पहले भी हम लोगों ने इजहार इख्फा इदगाम पढ़ा था, तो उनसे डिफरेंस करने के लिए इसके अंदर शफवी लगाया हुआ है। शफवी माने होता है होठ। मीम जो है वो होठों का हुरूफ है, इस वजह से इसके आगे शफवी लगा दिया है, ताकि जो नून के नाम थे उनके अंदर ये मर्ज ना हो जाए। तो हम कहेंगे इजहार शफवी, इदगाम शफवी, इख्फा शफवी, 3 ही है, इसमें कोई इकलाब नहीं है, यानी कि लेटर चेंजिंग नहीं है, इसलिए इकलाब वाला जो पार्ट था वो हटा हुआ है। एक एक हुरूफ ही आते हैं बेचारे इसके अंदर। तो जब आप मीम साकिन के बाद मीम और बा देखें तो आप, उसका अलग रूल है। बाकी जितने भी बचे हुए रूल हैं सबके अंदर आप इजहार करके पढ़ेंगी। तो मीम को ज्यादातर जाहिर करके पढ़ा जाता है, सिर्फ मीम और बा के साथ कुछ हम करेंगे, बाकियों के साथ जाहिर करेंगे। जाहिर यानी कि उसके मीम के मखरज से क्लियर पढ़ लेंगे। कैसे? अलम तरा यमशी वम्रअतुहु। तो आपने देखा कि मीम को हम क्लियर क्लियर पढ़ रहे हैं और खींच भी नहीं रहे हैं नाक में छुपा के वगैरह। तो ये हो गया इजहार, इजहार शफवी। अब आते हैं पॉइंट 2 पे, जो कि मीम साकिन के बाद सिर्फ एक लेटर है बा। अगर बा आ जाएगा तब हम क्या करेंगे? इख्फा करके पढ़ेंगे और नाम होगा इख्फा शफवी, यानी कि मीम की आवाज को बा की तरफ छुपाते हुए पढ़ेंगे। असल में मीम और बा दोनों ही हुरूफ होठों के हैं,
تو اتنا خاص چھپانا اس کے اندر نہیں ہمیں سمجھ میں آتا، لیکن بس آپ یہ کہہ لیں کہ غنہ کر کے پڑھیں گے تب بھی آپ کا یہ صحیح ادا ہو جاتا ہے. جیسے وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ، میم ساکن آیا اور اس کے بعد با لکھا ہوا ہے. یہاں پر بھی آپ دیکھ رہے ہیں میم ساکن آیا اس کے بعد با لکھا ہوا ہے، تو کیسے پڑھیں گے؟ رَبِّحْكُمْ بِالْحَقِّ، اس طرح سے کھینچ کے. پھر ایک اور رہتا ہے میم کے بعد میم لٹرانا. میم ساکن کے بعد اگر میم حروف آ جائے گا تو ہم اس کو مرج کر کے پڑھیں گے، ادغام کر دیں گے، یعنی آگے والے میم پر چلے جائیں گے، اور اس کا نام ہے ادغام شفوی. ویسے تو دیکھنے میں آپ کو پتہ چل رہا ہے کہ پہلی والی میم ہٹائی جا رہی ہے، ادغام کامل، اس میں کوئی کامل ناقص ہمیں نام نہیں دینے ہیں. دیکھنے میں تو یہ ادغام کامل ہے، لیکن ہم بس اس کو کہتے ہیں ادغام شفوی انف. تو میم کے بعد اگر میم آئے گی تو آپ اس کے اندر ایک اور پارٹ بھی آسان رہتا ہے. میم ساکن کا پورا چیپٹر اگر آپ با کے ساتھ دھیان دے لے جائیں، میم ساکن کے بعد با، آپ کا پورا کور ہو جاتا ہے، کیونکہ یہاں تو ہمیں نارمل ہی پڑھنا ہے اظہار میں. نیچے والے میں میم کے ساتھ شدہ لگا ہوتا ہے، تو وہ ابھی ہم نے شدہ میں ہی پڑھ لیا کہ جب میم مشدد ہو تو ہم کھینچ کے پڑھیں گے. بچا ہے صرف با. اگر آپ با کو دھیان لے جائیں تو دھیان کر لے جائیں تو پورا کے پورا چیپٹر آپ کا صحیح ادا ہو جاتا ہے، اور غنہ کہیں بھی آپ کا مس نہیں ہوتا. تو غنہ کے لحاظ سے ابھی تک ہم لوگ نے دیکھا کہ نون ساکن میں اگر اظہار آئیں گے تو ہم غنہ نہیں کریں گے، باقی سب پہ کریں گے. میم میں کیا دیکھا کہ با آئے گا تو ہم اظہار غنہ کریں گے، باقی کسی پر نہیں کریں گے. یہاں پر بھی کریں گے، لیکن یہ نون اور میم مشدد والے پوائنٹ میں کور ہو جاتا ہے. تیسرا پوائنٹ ہے کہ نون اور میم پہ شدہ لگا ہو تو ہم غنہ کر کے پڑھیں گے. اوکے چلیں شروع کرتے ہیں ابھی ہمارا دوسرا چیپٹر جو کہ را کے رولز ہیں. اس میں ہم لوگ نے الحمدللہ صرف 4 پوائنٹ ہی لیے ہوئے ہیں. پہلا یہ کہ را کے اوپر خود جب زبر زیر پیش لگا ہو تب ہم کیسے پڑھیں گے، اور پورا چیپٹر ہے کہ اسے کہاں پر ہیوی کرنا ہے کہاں پر نہیں. تو را کے اوپر فتحہ اور ضمہ ہو، یعنی کہ زبر اور پیش ہو تو ہم اسے ہیوی کریں گے، یا را ساکن ہو اور اس سے پہلے بھی ضمہ اور فتحہ ہو تو ہم اسے ہیوی کریں گے. یا پھر آپ ایسے را کو ساکن کر رہی ہوں، یعنی کہ وہاں پر رک رہی ہوں، آپ کو سکون لگانا ہو اس کے اوپر، اور پھر اس کے بعد آپ اس سے پہلے آپ دیکھیں گے کہ کیا ہے. اگر فتحہ ہے، سکون اس سے پہلے بھی سکون ہے، تب آپ اس کو پہلے اس سے بھی پہلے والے حروف، یعنی کہ ہر وقت جب بھی آپ کو را ساکن ملے گا آپ اس سے پہلے کی حرکت ڈھونڈیں گی کہ کیا لگا ہے. اگر فتحہ اور ضمہ ہے تو آپ اسے ہیوی کر دیں گی، اور کسرہ ہے تو باریک کر دیں گی. کہ قاعدہ نمبر 1 اور قاعدہ نمبر 2 بس فتحہ ضمہ کسرہ کے ساتھ ہی ہے، آسان ہے کافی. اس کے بعد دو کچھ ایکسیپشن ہیں کہ ابھی ہم لوگوں نے پڑھا کہ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ ہو تو ہم اسے باریک پڑھتے ہیں را کو، لیکن یہ 2 جگہیں ایسی ہیں کہ را ساکن سے پہلے اگر کسرہ بھی ہوگا جب بھی ہم اسے ہیوی پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تب جب را ساکن ہو اس سے پہلے کسرہ ہو، لیکن اس کے بعد والا جو ہو وہ حروف ہیوی ہو، ہیوی لیٹر میں سے ہو. تو اگر آپ کا صاد قاف طا سارے کے سارے نہیں آتے اس میں، تو جو 3 آتے ہیں انہیں نہیں آتے وہی لکھ دیے ہیں کہ صاد قاف طا دیکھیں گی اور ایک ہی ورڈ میں ہوگا تب ہم اسے ہیوی نہیں کریں گے. المرصاد کب ہیوی کریں گے؟ جب آپ کے ہیوی لیٹر آ جائیں، را ساکن اور اس سے پہلے کسرہ لیکن اس کے بعد ہیوی لیٹر آ جائے تو آپ اس کو ہیوی کر کے پڑھیں گی اور کہیں گی المرصاد. اسی طرح فی قرطاس، ایک اور جگہ اور ہے جہاں پہ را ساکن ہوگا اس سے پہلے کسرہ آپ لگائیں گی تب بھی اسے ہیوی کر کے پڑھیں گی. یہاں پہ انہوں نے تھوڑے سے چینجز کروائے تھے کہ حمزۃ الوصل کسے کہتے ہیں یہ بھی سیکھا تھا. حمزۃ الوصل وہ حمزہ ہے جو بیچ میں اگر آتی ہے تو اسے نہیں پڑھا جاتا ہے، اور وہیں سے اگر ورڈ شروع کیا جائے تو اسے پڑھا جاتا ہے. انڈیا کے قرآن پہ یا سعودی کے قرآن پہ موسٹلی ان میں کوئی سائن نہیں پڑی ہوتی ہے. انڈیا کے قرآن میں وہ کہیں کہیں ڈال بھی دیتے ہیں، اللہ کے نام کے ساتھ بھی حمزۃ الوصل آتا ہے، لیکن آپ دیکھتی ہیں کہیں نہ کہیں اس کے اوپر یہ ڈالا ہوا ہوتا ہے حمزۃ الوصل، فتح کسرہ ضمہ وہ ڈال دیتے ہیں تاکہ انسان غلطی سے بھولے سے غلط نہ پڑھ لے. لیکن سعودی کے قرآن میں وہ الحمدللہ اس کے اوپر حمزۃ الوصل کے اوپر صاد کا ہیڈ جیسا بنا کے رکھتے ہیں، پہچان لی جاتی ہے کہ یہ حمزۃ الوصل ہے، اور فتح کسرہ ضمہ وہ لگانا سکھا دیتے ہیں، یعنی کہ تجوید کے ساتھ ہی اسے بتایا جاتا ہے کہ آپ اگر ایسے ہوگا تو ایسے پڑھیں گے. جیسے کہ انڈیا کا قرآن میں جو یہ والا پارٹ لکھا ہوتا ہے ارجعی،
اس کے اوپر آپ دیکھیں گے کہ وہ الف کے ساتھ کوئی فتح کسرہ دمہ نہیں ڈالتے ہیں. تبھی انڈیا والے میں بھی ہمیں سیکھنا ہی پڑے گا کہ حمزۃ الوصل آئے تو ہم کیا کرنا ہے. اچھا، را ساکن سے پہلے اگر آپ کو حمزۃ الوصل دکھے گی تو آپ اس را کو ہیوی ہی پڑھیں گے. تھوڑا سا چینج کرا تھا یہاں پر کہ یہاں پہ لکھا ہوا ہے کسرہ عارضی، اس کو ہم لوگوں نے چینج کر کے کیا کر لیا تھا حمزۃ الوصل. را ساکن سے پہلے اگر حمزۃ الوصل آئے گا تو ہم اسے ہیوی کر کے پڑھیں گے، اس را کو ہیوی کر کے پڑھیں گے. کسرہ عارضی سے مراد کیا ہے کہ آپ وہاں پر کسرہ تھا نہیں، آپ نے خود لگایا ہے. ٹھیک ہے، تو ایسی حالت میں ہم اسے ہیوی کر کے پڑھیں گے. ارجعی، ار نہیں کہیں گے. تو یہ ہو گئے ہمارے چاروں پارٹ انشاءاللہ. اب ہمارا آتا ہے شمسی اور قمری. اس میں صرف ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پر ہمیں ال سے ریلیٹڈ ہے. یہ پورا یہ والا ال ہے، جہاں پر بھی آپ ال ایڈ کریں گی تو اب ہمیں کیا رول ادا کرنا ہوگا. کہاں پر ہم یہ والا یہ بھی حمزۃ الوصل ہے، کہاں پر ہم حمزۃ الوصل پڑھیں گے، کہاں پر نہیں پڑھیں گے، اور کہاں پر ہم لام پڑھیں گے، کہاں پر نہیں پڑھیں گے. شمسی اور قمری کے 14 لیٹر ہیں، اور جب آپ کو یاد کرنے کی ان کی ضرورت نہیں ہے، آپ اس کو پہچان سکتی ہیں بآسانی کہ آپ دیکھیں گے کسی بھی حروف کے ساتھ جب ال آگے لگا ہو، ال، اور اس کے بعد کا حروف جو آپ اس کے اوپر فتحہ لگا ہو یا کوئی بھی حرکت لگی ہو، لام کے اوپر اگر سکون لگا ہوگا تب آپ سمجھ جائیں گی کہ یہ لام مجھے پڑھنا ہے اور وہ القمری ہو جائے گا. القمر میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں کہ لام پڑھا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، القمر میں بھی آپ دیکھ رہی ہیں، اسی لیے اس کے نام القمری ہیں. تو جب ہم یہیں سے شروع کریں گے تو پڑھیں گے القمر، القمر، اور اگر اس سے پہلے کوئی بھی حروف آ جائے گا تب ہم حمزۃ الوصل کو بیچ سے نہیں پڑھیں گے، لام پڑھیں گے اور پڑھا جائے گا والقمر. تو جس کے لام کے اوپر سکون لگا ہو اور اس کے بعد کوئی بھی حروف قمری آ جائے گا تب ہم لام کو ادا کریں گے اور پڑھیں گے والقمر. اسی طرح ال کے دوسرا پارٹ آتا ہے کہ اگر آپ کا ال جو ہے وہ ایسے ان میں سے کسی بھی حروف کے ساتھ اٹیچ کیا ہوا ہوتا ہے، جیسے کہ شمس مانے سورج ہوتا ہے، لیکن الشمس ال جو ہے وہ الگ سے لگایا گیا اس کے اندر، تو جو ال لکھا ہوا آپ دیکھیں گی لیکن اس کے بعد شمسی میں سے کوئی لیٹر دکھے، یعنی آپ کیسے پہچانیں گی کہ لام کے اوپر اب آپ کو سکون نہیں ملے گا، لام خالی ہوگا، لکھا تو ہوگا لیکن کبھی بھی پڑھا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، اور اس کی نشانی کیا ہے کہ اس کے آگے والے حروف پر شدہ ہوتا ہے. ایسی حالت میں ہم یہ والا لام کبھی بھی نہیں پڑھتے. ہاں، یہ والی حمزہ کبھی کبھی ہم پڑھ سکتے ہیں کہ اگر ہم یہیں سے شروع کریں تب ہم پڑھیں گے الشاکرین، لیکن لام کبھی بھی نہیں پڑھا جاتا شمسی کا. تو بس آپ کا سوال یہی ہوتا ہے کہ شمسی کا لام کب پڑھا جاتا ہے، یا آپ بتائیں کہ یہ والا حروف لام القمری ہے کہ لام الشمسی ہے، تو آپ شدہ اور سکون دیکھ کے اچھے سے اس کو پہچان لیتی ہیں. بس اتنا ہی اس میں رہتا ہے. اللہ کے نام کو پڑھنے کا بھی طریقہ آپ سبھی کو بخوبی معلوم ہے اچھے سے کہ اللہ کے نام سے پہلے اگر فتحہ اور ضمہ ہے سیم را والے رول کی طرح تو اسے ہم بھاری ہیوی کر کے پڑھیں گے اللہ نار اللہ، لیکن اگر کسرہ ہے تو ہم اسے باریک کر کے پڑھیں گے باللہ ان اللہ، ہیوی کریں گے کیونکہ نون کے اوپر فتح ہے اور فتح لام سے ملایا جا رہا ہے. چاہے آپ ڈائریکٹ ہی کیوں نہ پڑھ رہی ہوں اللہ، تب بھی آپ فتح ملا رہی ہوتی ہیں لام بیچ والے سے، تو آپ اسے ہیوی کر کے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے مد کا چیپٹر شروع ہوتا ہے جس میں ہم لوگوں نے صرف 4 مد پڑھے تھے، اور لیول 2 میں آپ زیادہ اس کے اور بھی ساری ڈیٹیل پڑھیں گی. 4 مد کون سے ہیں؟ انڈیا میں وہ الگ الگ طریقے سے اس طرح سے لکھتے ہیں، لیکن اگر سعودی کا قرآن ہوگا تو وہ یہ نہیں لکھتے ہیں، کوئی بس یہی والا لکھتے ہیں، ایسا والا سائن وہ نہیں ڈالتے ہیں. انڈیا کے قرآن میں اگر 4 یا 5 حرکت والا مد ہو تو وہ یہ والا سائن ڈالتے ہیں، اور اگر 6 حرکت والا ہو تو وہ یہ والا ڈالتے ہیں. تو 4 ہم لوگوں نے پڑھے تھے: مد الواجب، مد جائز، مد لازم، مد عارض. ہمیشہ جب بھی آپ مد کریں گی تو آپ دیکھیں گے کہ حروف مدہ کے اوپر ہی یہ مد بنے ہوئے ہوتے ہیں نا، حرکت کو تو ہم کھینچنا نہیں شروع کر دیتے ہیں، تو ہمیشہ آپ دیکھیں گے کہ حروف مد آئے ہوئے ہوں گے. تو جب کنڈیشنز آپ کو لکھنی ہو کہ کب ہمیں مد بنانا ہے تو آپ دیکھیں پہلے حروف مدہ ہوگا، اس کے بعد کچھ ہوگا. تو 2 مد تو حمزہ کی وجہ سے بنتے ہیں، جو کہ مد یہاں پر ہے پہلا والا ہمارا مد واجب کمپلسری والا مد
जिसको हमें हमेशा पढ़ना ही पढ़ना होता है, इसे 4 या 5 हरकत खींच के पढ़ा जाता है। यहाँ पे थोड़ी सी काउंटिंग जो है वो गलत लिखी हुई है, आप लोग अपने अपने पीडीएफ में सही कर लीजिए। 4 या 5 हरकत अगर इसे पढ़ा जा सकता है, तो इसकी क्या पहचान है कि ये एक ही वर्ड में आते हैं। कौन? हुरूफ मद भी और हमजा भी। अगर आपको एक ही वर्ड के अंदर हुरूफ मद और हमजा मिल जाए तो आप मद वाजिब करेंगी और 4 या 5 हरकत खींच के पढ़ेंगी। एक और निशानी इसकी ये भी होती है कि आप हमजा जो है वो असली शक्ल में लिखी हुई होती है, तो असली शक्ल में लिखी हो तब भी आप उसे मद वाजिब कहेंगी। कभी कभी ये जो वाला है असली शक्ल वाला, ये इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि कुछ वर्ड ऐसे हैं जिसमें हमजा असली शक्ल में भी लिखी होती है लेकिन फिर भी वो मद जायज होते हैं। तो असली पहचान ये है कि वो सिंगल वर्ड होना चाहिए। इंशाल्लाह अल्लाह सुब्हानहू व तआला हम सभी को कुरान को बेहतरीन तरह से समझने की तौफीक अता फरमाए, ताकि हम लोग अच्छे से उसके वर्ड पहचान सकें। दूसरा हमारा मद है मद जायज। मद जायज भी सेम रीजन होता है, हुरूफ मद के बाद हमजा अगर आ जाए, लेकिन हमजा नेक्स्ट वर्ड में आती है। मद पहले वर्ड में होगा और हमजा अनदर नेक्स्ट वर्ड में होगा। अगर इस तरह से होगा तो हम उसे मद जायज कहेंगे। दूसरी निशानी ये भी है कि वो हमजा जो है वो अलिफ की शक्ल में लिखी हुई होगी। ठीक है, तो ये दो अलग अलग वर्ड होने की वजह से इनका मद जायज जो है, इसको कभी कभी हम अगर जल्दी पढ़ना चाहें तो छोड़ भी सकते हैं, ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद, इस तरह से। लेकिन दूसरे जो मद हैं उनको हम स्किप नहीं करते हैं, हमेशा हमेशा पढ़ा जाता है। मद लाजिम कब बनता है? जब आप देखें हुरूफ मद्दा के बाद सुकून या फिर शद्दा आ जाए। ठीक है, हुरूफ मद के बाद दो चीजें अगर आएंगी तो आप उसको मद लाजिम करेंगे, और मद लाजिम की रेंज कितनी होती है? 6 हरकत खींच के इसे पढ़ा जाता है इंशाल्लाह। यहाँ पे 7 लिखा है, आप इसे 6 कर दीजिए। और कैसे पढ़ेंगे? अल-हाक़्क़ा। ठीक है, हाक़, इस तरह से झटका देके आवाज को नबर करके मिलाएंगे और फिर 6 हरकत खींचने के बाद इस तरह से पढ़ेंगे। अगर नून और मीम आएगा तब हम मद करके पढ़ेंगे, और अगर कोई और लेटर होगा तो हम नबर करके पढ़ेंगे। नबर क्या होता है? थोड़ी सी आवाज को ऊंचा कर लेना, जैसे अल-हाक़्क़ा, इस तरह से। ये है सुकून का एक एग्जाम्पल। आना, ये हो गया मद्दे वाजिब, सॉरी मद्दे लाजिम। मद्दे लाजिम को 6 हरकत खींच के पढ़ा जाता है और ये शद्दा और सुकून की वजह से बनता है। लास्ट हमारा मद था मद आरिज़ सुकून, जिसमें हमें देखना है कि वो वाला सुकून जो कि हमने खुद लगाया हो, आर्जी हो सुकून, टेम्परेरी हो सुकून, यानी कि वहां पर लगा तो नहीं था, हमने जब रुकने की वजह से, आपको मालूम है कि अरबी जो है वो कभी भी आप कुरान बगैर साकिन किए नहीं रुकती है ना। जब आप साकिन करके रुकेंगी और उससे पहले हुर्फ मद आ जाएगा, ऐसी हालत में हम उसे 2, 4 या 6 हरकत तक खींच के पढ़ सकते हैं। इस मद को मद्दे आरिद कहा जाता है। पूरा नाम होता है मद आरिद लिस सुकून। आप सिर्फ मद आरिद भी अभी पढ़ सकती हैं। तो देख रही हैं आपके, अगर आपको यहाँ पर रुकना हो, अदाब, बा पे आपने, बा को आप सुकून देंगी, उससे पहले आपका अलिफ मद आया गया, तो आप इसे खींच के पढ़ सकती हैं 2, 4 या 6। इसी तरह आप अन्नार, अगर रॉ को सुकून लगा दे, रुकना हो यहाँ पर, तो आप इस वाले अलिफ को 2, 4 या 6 यानी मद आरिद करके पढ़ सकती हैं। तो ये लिखा हुआ तो वहां पे नहीं होता है, कोई साइन भी नहीं बनी होती है, आपको खुद इसे याद करना होता है कि कभी भी आप सुकून लगाएं और उससे पहले हुरूफ मद्दा आ जाए तो आप उसे 2, 4 या 6 हरकत खींच के पढ़ सकती हैं। ठीक है, चलो। हाँ, ओके, ये हमारे हो गए। इसके बाद हुरूफ मुक़त्तआत है। इसमें हम लोगों ने देखा था कि नून और मीम के रूल पूरे पूरे हम लोगों को अदा करने होते हैं। यहाँ पर आप जो नीचे लिखे हुए देख रही हैं, मीम साकिन के बाद मीम आ गया है, तो हम लोगों ने भी सीखा, क्या सीखा कि हम लोग इदगाम करके पढ़ते हैं। तो हम लोग इदगाम करेंगे गुन्ना के साथ, अलिफ लाम मीम, इस तरह से। यहाँ अभी आप देख रही हैं मीम साकिन के बाद मीम, फिर हम खींच के पढ़ेंगे। यहाँ पर फिर से मीम साकिन के बाद मीम, फिर हम खींच के पढ़ेंगे। यहाँ हम देख रहे हैं कि नून साकिन के बाद सौद, उन्होंने क्या देखा था कि इख्फा करके पढ़ते हैं, और वो भी हैवी। कैसे? काफ हा या आइन सौद। जब आई के बाद नून पर आए तो हम इख्फा करेंगे।
इसी तरह से जहाँ जहाँ भी आपको नून साकिन के बाद या मीम साकिन के बाद कोई भी रूल दिख रहा है आप उसको पूरा अप्लाई करके पढ़ेंगे। जैसे तौसीम मीम, सीम कहेंगे हम, सीम, सीन नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि नून साकिन के बाद मीम आ गया। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि इदगाम कामिल करते हैं इसमें ना, गुन्ना के साथ। इसी तरह यहाँ पर भी आप नून साकिन देख रही हैं और उसके बाद सीन, नून साकिन के बाद कॉफ, इख्फा करके पढ़ेंगे। ऐन सीन कॉफ। लास्ट हमारा रहता है साकिन हरूफ, जो कि साकित हरूफ, जो कि कभी भी नहीं पढ़े जाते हैं। लिखे तो होते हैं, कभी भी नहीं पढ़े जाते हैं। ठीक है, जैसे कि ये उलाइका का वाव, तो या तो इसके ऊपर कोई छोटा सा सर्किल डाल दिया जाता है याद रखने के लिए, या फिर इसको हटा ही दिया जाता है, या आपको बता दिया जाता है कि इसे ऐसे ही पढ़ना है। ठीक है, तो इंशाल्लाह आपके ये वाले भी या तो आप उसको अच्छे से पहचान जाती हैं लिख पढ़ के, या फिर आपको छोटी सी साइन इसके ऊपर छोटा सा सर्कल लिखा हुआ मिलता है इंशाल्लाह। या फिर जैसे ये वाले हैं, ये वाले जहाँ पे मिस्टेक होने की, गलती होने का डर हो, तो वो उसको हटा, लअनतुम अशद्दु, इस तरह से इसको वो हटा देते हैं। इसके बाद हमारा आता है अना। अना अगर लिखा हो तो आप क्या करेंगी, अगर यहाँ पे सांस टूट जाए तब तो हम इसका अलिफ पढ़ेंगे, जैसे अना। लेकिन अगर आप लगातार पढ़ती जाएं, अना उही व उम्मीद, तब आप इसका अलिफ नहीं पढ़ेंगी। तो अना का अलिफ ऐसा है जो कि कभी कब पढ़ा जाता है, सिर्फ रुकते वक्त। जैसे कि अगर आपकी सांस यहाँ पे टूट जाए, वला अना, तब आप अना कहेंगी, ना कि अना। लेकिन अगर मिला के पढ़ रही हो तो वला अना आबिदुम, इस तरह से। चलिए, ये भी बहुत आसान है। इसके बाद हमारा लास्ट आता है नून कुतनी, साकित और सक्ता और नून कुतनी। सक्ता क्या है, आप रुकेंगी तो रुकने के सारे रूल भी अप्लाई करेंगी, लेकिन सांस नहीं लेंगी। सक्ता के लिए या तो वहां पे सीन लिखा होता है या फिर छोटी सी सक्ता ही पूरा लिखा हुआ होता है। जहां भी आपको इस तरह से सकता है सीन लिखा मिल जाए तो आप सांस ना तोड़िए वहां पर, और थोड़ा सा रुकिए और फिर आगे बढ़ जाएंगे। जैसे कि वजह क़य्यिमन लियुनज़िर मिन मरक़दिना हाज़ा, इस तरह से। तो आप रुकने का रूल अप्लाई कीजिए, लेकिन सांस ना लीजिए और आगे फिर बढ़ जाइए। ये क्या होती है, नून कुतनी। नून कुतनी जो छोटा सा नून लिखा हुआ होता है उसे नून कुतनी कहा जाता है। और अगर आपके तनवीन और नून साकिन के बाद हमज़तुल वस्ल आ जाए, ऐसी हालत में हम एक तनवीन हटा देते हैं, यानी एक पेश जेर जो जबर जो भी लगा हो उसे हटा देंगे और छोटी सी नून लगा के पढ़ेंगे, यौमइज़िनिल हक़्क़ु। इसमें दूसरा पॉइंट क्या लिया था हम लोगों ने, कि नून कुतनी के आगे पीछे वाला जो अलिफ होता है वो नहीं पढ़ा जाता है, चाहे वो हमज़तुल वस्ल आगे लिखी होती है चाहे पीछे अलिफ मद्दा। कैसे, अलीम अज़ाबन अलीमनिल्लज़ी। ठीक, अरबी कुरान में तो नून कुतनी लिखा हुआ होता है, जिसको अगर आप यहाँ पर रुक जाइए तो फिर से निल्लज़ी ऐसे करके नहीं पढ़ना है, कंटिन्यू पढ़ने की जगह पर हम पढ़ते हैं। अगर आप अलग से सांस लेकर पढ़ेंगी तब आप इसे अल्लज़ी ही पढ़ेंगी। अरबी कुरान में नून कुतनी नहीं लिखी हुई होती है, हमें खुद पहचानना होता है कि तनवीन के बाद हमज़तुल वस्ल आई है, तो अब मुझे कैसे पढ़ना है, यौमइज़िनिल हक़्क़ु, इस तरह से। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की पीडीएफ कंप्लीट हो गई। एक पार्ट और था इसमें जो पेज नहीं है, वो ये कि आपको कैसे रुकना है। आपके कुरान में जा लिखा है, जीम लिखा है, या क्या लिखा है, उसके साथ क्या है, तो वो हमारे अपने अपने रूल उसके आगे लिखा होता है। मीम लिखा है तो बिल्कुल भी ना रुकें, ये वो इस तरह से आपका अलग अलग आता रहता है, तो उसको वैसे ही इंशाल्लाह आप उसको पढ़ेंगी। चलिए, बारकल्लाह फीकुम, सुब्हानकल्लाहुम। जी, किसी के कोई सवाल तो नहीं है? पीडीएफ अल्हम्दुलिल्लाह हम लोगों की हो गई है पूरी, किसी का कोई सवाल तो नहीं है। अब आप लोग की थोड़ी बहुत प्रैक्टिस भी करवाई जाएगी इंशाल्लाह। तजवीज से रिलेटेड किसी का अगर कुछ पूछना है तो पूछ लें, नहीं तो फिर इंशाल्लाह मीटिंग बंद करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाहि अस्सलाम वबरकातुहू। वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे मीना सुनिए, ये अजान हो गई, मगरिब का टाइम है।
جی آپ نماز کے بعد پھر جوائن ہوئے گا، ٹیچر بھی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ، جی جیسے وہ بتائیں گے ان کے ساتھ جزاک پھر اللہ ویسے ہی خیر. کر لیجیے جی گا. جی اوکے چلے پھر میٹنگ بند کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.